إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، اخبارات کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کو اس اندوہناک واقعے اور حادثے کی اطلاع ہے کہ اس وقت ترکیہ اور سوریہ کے اندر زبردست زلزلہ آیا ہوا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کی جانیں برباد ہوئیں، تلف ہوئیں، اور کروڑوں انسان بے گھر ہو گئے اور اس حادثے کا شکار ہو گئے، اور لاکھوں مکانات زمین بوس ہو گئے. پوری افراتفری اور تباہی اور بربادی کا منظر ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان زلزلوں میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں؟ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ اور پنہاں ہیں. ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی حادثے کی اطلاع ہمیں ملے اور اس سے ہم گزر جائیں اور اس حادثے کے اوپر غور و فکر نہ کریں، خاص طور سے جب کوئی بڑا حادثہ ہو اور اس طرح کا کوئی واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور نہ جانے کتنا نقصان ہوا. اس کا اندازہ تو بعد میں کیا جائے گا. اس لیے ایسے واقعات پر ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، تدبر اور تفکر سے کام لینا چاہیے کہ آخر اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے مصائب، آفتی مصائب، آفات اور مصائب اور اس طرح کی چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں دنیا کے اندر؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج کے خطبے میں اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم و دائم رکھے. گناہوں سے، شرک اور بدعات اور خرافات سے جو ان زلزلوں اور اس طرح کے آفات اور مصائب کا ذریعہ اور سبب ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. اور جو اس زلزلے میں حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین انہیں گھر مہیا کرے اور اللہ رب العالمین کی آفتوں کو اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے. زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. یہ زمین پوری دنیا کی مخلوقات کا بوجھ اٹھاتی ہے، بوجھ برداشت کرتی ہے. اللہ نے اس کے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے کہ انسان اسی زمین پر چلتا ہے، گھر بناتا ہے، 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو ان کے لیے میخ بنا دیا، وتد بنا دیا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اگر زمین اس لائق نہ بنائی جاتی
इस पर इंसान बच सके तो इंसान दुनिया के अंदर कहाँ रहता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की मुतअद्दिद आयतों के अंदर बयान किया है। अल्लाह ताला के इरशाद है, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा वस्समाअ बिनाअ, अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करार की, ठहरने की जगह बना दिया है। इंसान ठहरता है, घर बनाता है, महल्लात खड़े करता है, दुकानें बनाता है और इस तरीके से कारोबार करता है और ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारता है। वस्समाअ बिनाअ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को छत बना दिया है। पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के लिए खूंटा बनाया। ये पहाड़ ज़मीन को हरकत करने से रोकते हैं, ये भी एक सबब और ज़रिया हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके ज़मीन को हमारे लिए जाए करार बनाया। अलम नजअल अर्द औतादा अलम नजअल अर्द मिहादा वल जबाल औतादा, अल्लाह फरमाता है क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बना दिया। जैसे इंसान बिछौने पर और बिस्तर पर जाता है तो आराम उसे मिलता, सुकून मिलता है, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बना दिया। वल जबाल औतादा, और हमने क्या ज़मीन को और पहाड़ों को क्या हमने ज़मीन के लिए खूंटे नहीं बना दिया, मेख नहीं बना दिया। ये मेख और ये खूंटे ज़मीन की हरकतों से और ज़लज़लों से रोकते और मना करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के तहत। इस तरीके से अल्लाह ताला का इरशाद है, अम्मन जाल अर्द क़रारा, कौन है जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बना दिया। वजअल खिलालहा अनहारा, और उसके दरमियान से अल्लाह रब्बुल किसने कौन है जिसने नहरों को जारी किया। वजअलहा रवासिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए पहाड़ बना दिए जो ज़मीन को हरकत करने से मना करते हैं। वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, और कौन है जो दो समंदरों के दरमियान हाजिज़ और दीवार खड़ी करता है। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सर लोग ऐसे जो नहीं जानते। ये सब काम अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं इन सारी चीज़ों को अंजाम देने वाला। लिहाजा जब रब ही है तुम्हारा खालिक व मालिक, रब ही ने सारी नेमतें तुम्हें मुहैया की हैं, लिहाजा गैरों को छोड़ो, गैरुल्लाह को छोड़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देने वाला। यही ज़मीन जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करार की जगह बनाई, ठहरने की जगह बनाई, हमारे लिए बिछौना बना दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आता है तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन जो हमारे लिए अमान है, जो हमारी हिफाजत का ज़रिया है, यही घर जिस घर के अंदर हम बसते हैं और घर के अंदर रहने से अपनी जान अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हैं, अपने माल की हिफाजत करते हैं और उसके अंदर हमें सुकून मिलता है। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है, अल्लाह ताला की मशीयत आती है, यही ज़मीन मौत का ज़रिया बन जाती है। यही घर हमारे लिए मौत का ज़रिया बन जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत के तहत होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के तहत होता है। लिहाजा सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाया है, जिस पर हम और आप जीते हैं और बसते हैं। और ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये ज़लज़ले क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ बयान की गई हैं कि क़यामत से पहले ज़लज़ले आएंगे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सयकूनु फ़ी आखिर ज़माने खस्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़्फ़, आखिरी ज़माने में खस्फ होगा, यानी ज़लज़ले आएंगे, लोगों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। वो मस्ख़ुन और मस्ख़ होगा, लोगों की सूरतें बदल दी जाएंगी। व क़ज़्फ़ुन, और पत्थरों की बारिश बरसाई जाएगी। व इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ वल क़ीनात, जब गाने आम हो जाएंगे और इस तरीके से गाने वाली लड़कियां और औरतें आम हो जाएंगी। वस्तुहिल्लतिल ख़म्र, और जब शराब को हलाल कर लिया जाएगा तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ताज़ियाने आएंगे। ये सारी मुसीबतें और परेशानियां उम्मत के लोगों के ऊपर आएंगी जब ये सारी बुराई उरूज पर होंगे और सारी बुराइयां की जाने लगेंगी, तो इस तरीके सारी चीज़ें होंगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि ज़लज़लों का आना। सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़बज़ल इल्म, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा। और इल्म को उठा जाने से मतलब ये है कि उलमा को उठा लिया जाएगा। और यहाँ इल्म से मुराद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के उलमा है। बुरे उलमा रहेंगे और दुनिया का इल्म रहेगा, लेकिन जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर चलने वाले और उसकी तरफ लोगों को दावत देने वाले हैं, ऐसे उलमा को उठा लिया जाएगा। और जब वो उठ जाएंगे, दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, तो दुनिया के अंदर बिदात और शिर्क का बाजार गर्म हो जाएगा, क्योंकि यही उलमा लोगों को शिर्क से मना करते, बिदात से मना करते हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तालीम देते हैं। लिहाजा ये नेमत है, ये जिस तरीके से ये सूरज और आसमान के लिए चाँद और सितारे जीनत हैं, इस तरीके से मेरे भाइयों जो अहले हक़ उलमा हैं,
जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक चलने वाले उलमा हैं, जो बिदात और खुराफात से दूर रहने वाले उलमा हैं, ये ज़मीन की जीनत हैं, ये ज़मीन की बका का ज़रिया और सबब हैं। अल्लाह के फरमाते क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, और इल्म उठाने से मतलब ये है कि उलमा को उठा लिया जाएगा, उलमा की मौत हो जाएगी। फिर आपने फरमाया वतक्सरु ज़लाज़िल, ज़लज़ले खूब ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। आज से 50 साल 100 साल पहले देखिए इतने ज़लज़ले नहीं आते थे जितने ज़लज़ले आज आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये ज़माना क़यामत के करीब होता जाएगा, ज़लज़लों की कसरत होती जाएगी। फिर आप फरमाते तज़हरुल फ़ितन व यकसुरुल हरज, और फितने बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगे, बहुत फितने हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारे फितने नहीं आए हैं या कम फितने हैं। जैसे ज़माना गुजरता जाएगा, क़यामत करीब होती जाएगी, फितनों की कसरत होती जाएगी। व यकसुरुल हरज, और कत्ल ज़्यादा होने लगेगा। कत्ल यानी बग़ैर किसी वजह के, कातिल को ये नहीं मालूम होगा कि मैंने इसको क्यों कत्ल किया, मक़तूल को ये नहीं मालूम होगा कि मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है। आज भी ये सूरत हाल मौजूद है मेरे भाइयों। एक आदमी जाता है नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद का रुख करता है, बाज़ार जाता है सामान ख़रीदने के लिए, या अपने मदरसे और स्कूल जाता है, और वो जो है बम ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, उसे कत्ल कर दिया, तो उसे मार दिया जाता है। उसे पता नहीं कि हमें किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है, और जो ये करता उसे भी नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। इससे और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। तो आप फरमाया कि कत्ल जो है ये कसरत से होने लगेगा, खूब ज़्यादा होने लगेगा। तो आपने इस हदीस के अंदर, बुखारी की हदीस है, आपने ज़लज़लों को क़यामत की निशानियों में से निशानी बयान किया है कि ज़लज़ले आएंगे। इस तरीके से ज़लज़ले मेरे भाइयों बड़े ज़लज़ले की याद दिलाते हैं। ये ज़लज़ले छोटे ज़लज़ले हैं। एक ज़लज़ला ऐसा आने वाला है पूरी ज़मीन तहोबाला हो जाएगी, आसमान और ज़मीन को बदल दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाता है वइज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, ज़मीन को हिला दिया जाएगा, वो बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ों को हवाओं का और पहाड़ों को धुली हुई रूई की शक्ल में उनको उड़ा दिया जाएगा, और उस तरीके से वो क़यामत कायम हो जाएगी। सबसे बड़ा ज़लज़ला होगा जो क़यामत का ज़लज़ला है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की तरफ इशारा करते हुए सूरह हज के अंदर फरमाया है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अल्लाह ताला से डरो, अपने रब से डरो, अल्लाह से डरो, रब से डरो, क्योंकि ज़लज़ला जो आने वाला है क़यामत का बहुत बड़ा ज़लज़ला है, बहुत बड़ा ज़लज़ला है। इतना बड़ा ज़लज़ला होगा कि दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी, बाप अपने बेटों को, और माँ अपनी औलाद को, और शौहर अपनी बीवी अपने शौहर को, सब एक दूसरे को भूल जाएंगे, और बेहोशी का आलम होगा। हालांकि वो बेहोश नहीं होंगे। अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा मेरे भाइयों कि बेहोशी का मंजर होगा, तबाही का मंजर होगा। आज वो तबाही वो मंजर आप तुर्किया और सूरिया के अंदर देख सकते हैं। बाप अपनी जान बचाने के लिए औलाद को छोड़ करके भाग रहा है, शौहर अपनी जान बचाने के लिए बीवी को छोड़ करके भाग रहा है, बाप और औलाद अपने बाप को अपनी जान बचाने के लिए माँ बाप को घर में छोड़ करके भाग रही है। ये क़यामत का मंजर पेश करता है, जो सबसे बड़ा मंजर ज़लज़ला आने वाला है, जिस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी, आसमान के जो है आसमान ख़त्म कर दिया जाएगा, सूरज चाँद सितारे बेनूर हो जाएंगे, और ज़मीन को जो है शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी ज़मीन को हिला दिया जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन का ज़लज़ला आ जाएगा, और वह अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने सारे बोझ को निकाल देगी, जो उसके सीने के अंदर जो अमानतें छपी हुई हैं, जो बोझ है, वो सारे बोझ को उठा देगी। लिहाजा ये जो ज़लज़ला आया हुआ है, ये आते हैं, ये सारे ज़लज़ले हमें क़यामत का मंजर याद दिलाते हैं। एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है, उस ज़लज़ला से आने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं, सवाल करते हैं क़यामत कब कायम होगी। आपने पूछा तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि सिवाय इसके हमारे पास कोई अमल नहीं है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। वो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम जिसके साथ हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उन्हीं के साथ उठाएगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये हदीस हमने सुनी तो सब ज़्यादा हमें खुशी हुई, क्योंकि हमें नबी से मोहब्बत है, अबू बकर और उमर से मोहब्बत है, अगरचे हमारे अमाल उनके जैसे नहीं हैं। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन इन सहाबा और इन मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएगा। ये सही बुखारी और मुस्लिम के रिवायत में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर और उमर से मोहब्बत करने को जन्नत में दाखिले का ज़रिया समझ रहे हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है। हमारे अमाल अबू बकर उमर जैसे नहीं हैं, हम कोताह हैं उनसे, हमारे पास कुर्बानियाँ कम हैं, हमारे पास अमाल उनके मुकाबले में कम हैं, और लेकिन एक ऐसा अमल है कि हमें उनसे मोहब्बत है। लिहाजा ये हदीस सुनकर के हमें बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन इन सहाबा के साथ उठाएगा, उनके साथ हमें
जन्नत के अंदर जगह मिलेगी। ये सहाबे कराम से मोहब्बत को सहाबे कराम जन्नत में जाने का जरिया और सबब समझते थे। और आज ऐसे फ़िरक़े हमारे मुल्कों के अंदर हैं जो सहाबे कराम को जहन्नमी करार देते हैं, सहाबे कराम की दावत और दुश्मनी को अपने लिए तकर्रुब का जरिया समझते हैं, सहाबे कराम की तकफीर करते हैं, सहाबे कराम गालियाँ देते हैं, सहाबे कराम को बुरा भला करते हैं, कहते हैं ये लोग जन्नत में जाने का जरिया और सबब समझते हैं। सहाबा पर इल्ज़ाम लगाना, सहाबा थे जो सहाबा से मोहब्बत को जन्नत में जाने का जरिया समझते थे, ये सहाबे कराम की तकफीर और उनको जहन्नमी और लानती करार देने को अल्लाह के तकर्रुब हासिल करने का जरिया समझते हैं। वो अल्लाह ताला के करीब तो नहीं जाते, वो शैतान इब्लीस के ज़रूर करीब जाते हैं। वो जन्नत के करीब नहीं जाते, वो जहन्नम के करीब ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये सारे अमाल इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं। अब जो है सहाबा से मोहब्बत करना ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो सहाबा से मोहब्बत नहीं करता, जिसके दिल में सहाबा के खिलाफ नफरत है, वो मुनाफिक है। और ये मुनाफिक दिल का निफाक है, ये ज़ाहिरी निफाक नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। लिहाजा जो सहाबा से मोहब्बत ना करे, जो सहाबा को बुरा भला कहे, उसका अंजाम जहन्नम ही होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की वही सुनाई गई है और ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया गया है। हमारे नबी ने फरमाया सहाबा से अंसार से वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और जो उनसे नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। ये नबी की शहादत है, ये नबी की गवाही है। लिहाजा ऐसे लोग देख लें कि वो कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं और उसके ज़रिए से किसकी रज़ामंदी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की रज़ामंदी तो हासिल कर नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, महबूब बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तरीक़े से ईमान लाने को हिदायत का ज़रिया करार दिया है। हमारे भी ने फरमाया वही फ़िरक़ा जन्नत के दर जाएगा जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। जो हमारे लिए जन्नत में जाने के नक्शे, जिनके नक्शे कदम की पैरवी करना ज़रूरी है, उनको काफिर कह करके, उनको जहन्नमी और मलऊन करार दे करके इंसान जन्नत तो नहीं जा सकता, वो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। जो सहाबे कराम के बारे में इस तरह की गलत अकीदे रखता है और इस तरीके से गलत बातें कहता है। कहने का मकसद है मेरे भाइयों कि जो ज़लज़ले आते हैं ये क़यामत का मंजर पेश करते हैं, क़यामत याद दिलाते हैं। इसीलिए जुमा के दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंसानों को छोड़ करके, जिन्नातों को छोड़ करके जितनी मखलूक़ात है सब जुमा के दिन डरती है अल्लाह ताला से। हम जुमा के दिन खुश होते हैं, किस बात से? क्या छुट्टी का दिन है, बाजार जाएंगे, जो है मौज मस्ती करेंगे। और बाजार जाके देखिए, बाजार में अभी असर के बाद आपको यहाँ जो है बाजारों के अंदर कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। खड़े रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, नज़ारे करेंगे, बिला वजह के बगैर किसी मकसद के जाएंगे। और इस तरीके से अजानें होती रहती हैं, नमाजें होती रहती हैं, लोग रोडों में बैठे रहते, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक के अंदर नहीं आते। ये सूरत हाल हो गई है। जुमा के दिन मखलूक अल्लाह से डरती थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज ही के दिन क़यामत कायम हो जाए और हम जा करके मौज मस्ती करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, कोई हमारे ऊपर खौफ नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हो सकता है आज ही दिन अल्लाह ताला जो है क़यामत कायम हो जाए। अलगरज कहने का मकसद ये है कि जो ज़लज़ले हैं मेरे भाइयों, ये ज़लज़ले क़यामत को याद दिलाते हैं। जब ये ज़लज़ले तो मामूली ज़लज़ले हैं, किसी इलाके के अंदर होते हैं, लेकिन क़यामत का ज़लज़ला पूरी दुनिया के अंदर होगा। ज़मीन का एक हिस्सा भी, एक बालिश भी कहीं नहीं बचेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिलाक को बर्बाद कर देगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, एक ही ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। सबको एक दिन फना होना है। याद कीजिए वो मंजर, आज का मंजर देख करके कितने लोग मौत के घाट उतर गए। किसने सोचा था सो रहे थे और सोने ही में चले गए, दुनिया से ख़त्म हो गए। किसने सोचा था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है? किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं मालूम। लिहाजा मेरे भाइयों, हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें और दुनिया ही के बनकर के, दुनियादार बनकर के ना रह जाएं। ये सारे ज़लज़ले हमें झिझोड़ने के लिए आते हैं, ये सारे ज़लज़ले हमें याद दिलाने के लिए आते हैं। लिहाजा इन ज़लज़लों को के ज़रिए से आखिरत को, क़यामत को याद करो। ये बहुत बड़ी इबरत और नसीहत की चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जैसे निशानियों को हमारे पास भेजता है। अल्लाह के इरशाद उमा नुरसिलु बिल-आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, हम जो निशानियाँ भेजते हैं, जो ज़लज़ले और आफ़तें आती हैं, ये डराने के लिए आती हैं। डरो तुम अल्लाह ताला के इंतकाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले बहुत सारी उम्मतों को ज़लज़लों के ज़रिए से डुबो दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोगों को पानी के अंदर डुबो दिया, बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है इससे पहले की उम्मतों को और कौमों को। लिहाजा ये ज़लज़ले हमें क़यामत का मंजर याद दिलाते हैं। हम क़यामत पे निगाहों के सामने रखें, जबकि उस दिन भी ये हाल होगा, यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीह, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने बीवी से, अपने बच्चों सब से भागेगा, औलाद से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, कोई किसी काम नहीं आएगा। ये छोटी सी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिखाई हमें, ये हमें वो मंजर याद दिलाती है। आज जो लोग क़यामत के मुनकिर हैं, देख लें कि दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल होती है,
یہ چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے، آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سب سے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، صرف اسے اپنی جان کی فکر ہوتی، کسی اور کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ چیز ہونے والی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائیوں۔ لہذا ان زلزلوں سے ہم قیامت کو یاد کریں۔ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ ان زلزلوں کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ظاہری سبب ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے۔ اور وہ ظاہری سبب یہ، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو زمین کے بارے میں علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کے اندر جب بھاپ اٹھتی ہے تو بھاپ باہر نکلنے کے لیے جب آتی ہے تو اس طریقے سے زمین پھٹتی ہے اور اس طریقے سے زلزلے کے حادثے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ سبب، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب بناتا ہے۔ اللہ کسی سبب کے ذریعے سے اولاد دیتا ہے، کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو روزی دیتا ہے، کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والا ہے۔ لہذا ہم دنیا دار بن کر کے نہ رہیں، دہریہ اور مادہ پرست بن کر کے نہ رہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بس یہی ظاہری سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن ظاہری سبب کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ وہی رب جس نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا، آج وہی رب کے حکم سے وہ زمین ہمارے لیے موت کا گہوارہ بن جاتی ہے، ہمارے لیے موت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا حال ان لوگوں کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ بس مادی اسباب ہے، یہ سبب ہے، اس سبب کو ہم دور کر لیں گے، زلزلے نہیں آئیں گے۔ آئیں گے زلزلے، کتنے بھی سبب پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کو جو ہے چلانے والا اور اس طریقے سے دنیا کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لہذا کتنے بھی سبب بنا لو تم لوگ، کتنے بھی کچھ کر لو، اللہ رب العالمین یہ چیز بھیجنے والا ہے، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے طریقے سے نہ ہو جائے جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کہتے ہیں دنیا کا سبب ہے، ہم نے کوتاہی کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ہو جانے کے بعد انسان کی بڑی عقل ہو جاتی ہے، پہلے انسان کے پاس کسی چیز کی عقل نہیں رہتی ہے۔ اس طریقے دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں گزرتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، لوگ اس پر گزرتے رہتے ہیں اور اسے اعراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ آتی نشانیاں چلی جاتی ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بھیجتا ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ظاہری سبب ہے، ایک حصی سبب ہے، مادی سبب ہے جس کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ مادی سبب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے مانوی سبب، جو بہت اہم سبب ہے میرے بھائیوں، اور وہ سبب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ سبب یہ ہے ہمارا گناہوں کے اندر پڑنا۔ ہمارے اندر جو بددینی ہے، بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو معصیت ہے، جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین زلزلے بھیجتا ہے اور اس طریقے آفتیں اور مصیبتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے برے کرتوت کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر کے آئیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ کتنی عظیم آیت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں چکھانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جو زلزلے آتے ہیں تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں توبہ کی طرف اللہ رب العالمین لے کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک طرف سے رحمت ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر کام کے اندر خیر ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ چیز نظر نہ آئے، ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا، اسی کے اندر بھلائی تھی، کشتی توڑ دی، اسی کے اندر خیر اور بھلائی تھی، اللہ جاننے والا تھا۔ اس لیے کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جو لوگ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین قریب آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے برے اعمال کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ آج پورے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیجئے، کتنی دین سے دوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ جو پہچان تھی ہماری توحید، آج ہمارے پاس توحید باقی نہیں رہے گی۔
किस तरीके से शिर्क किया जाता है, कब्रों का तवाफ होता है, कब्रों पर सजदे होते हैं, कब्रों के नाम पर, मज़ारों के नाम पर किस तरीके चादरें चढ़ाई जाती हैं। क्या कुछ शिर्क नहीं होता? जो ज़माने जाहिलियत के अंदर शिर्क था उससे भी बड़ा शिर्क होता है। मक्का के मुशरिक कम से कम परेशानियों में अल्लाह को याद करते थे, परेशानियों में, मुसीबतों में अल्लाह को याद करते थे। जब उनकी कश्तियाँ समंदरों के अंदर फंसती थी वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते थे और बाकी खुदाओं को भूल जाते थे, बाकी माबूदाने बातिला को छोड़ देते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? ज़लज़ला आता है, मज़ारों पर जाते हैं, कोई परेशानी आती, फसाद होता है, मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते हैं। मेरे भाई, ये शिर्क तो मक्का के मुशरिकीन भी नहीं करते थे। वो कम से कम परेशानियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, अल्लाह ही को याद करते थे। और वो कभी मक्का के मुशरिक अल्लाह के अलावा किसी के दर पर औलाद के लिए नहीं गया, बीमारी के से शिफा पाने के लिए किसी दर पर नहीं गया। लेकिन आज किसी को औलाद नहीं मिलती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर आने के बजाय वो बाजारों का रुख करता है, पीरों और फ़कीरों और वलियों के पास जाता है जो कब्रों के अंदर मदफून है, जो किसी चीज के मालिक नहीं है, जिन्हें भी नहीं मालूम कि उनके साथ क्या मामला होगा, उनके साथ कौन सा मामला किया जाएगा, इस चीज की उन्हें खबर नहीं है। कौन आता है, कौन जाता है, हर सड़ गल चुके हैं, उन्हें किसी चीज की खबर नहीं है। लोग जाकर के उनको गैरुल्लाह को उनको अपना रब बना चुके हैं, अल्लाह को भुला दिया, रब्बुल आलमीन को भुला दिया। देता रब्बुल आलमीन है माल, लेकिन उस माल को जाकर के गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। गैरुल्लाह के नाम पर नज़र नियाज और ज़बीहे पेश किए जाते हैं। रब दिया, माल रब ने दिया, सेहत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सब कुछ रब्बुल आलमीन ने दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर चढ़ाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर आने के लिए लोग जाकर के गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते हैं और गैरुल्लाह के सामने अपनी पूरी माल और पूरे जायदाद को बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग भी लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। क्या है मेरे भाइयों? ये शिर्क है, जो सबसे बड़ा शिर्क है जो आज उम्मत के अंदर पैदा हो गया है। ये सब गुनाहों की वजह से हमारे होता है। जब तक हम शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुफ्र रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद नहीं करेगा। हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी भुला दिया। कौन सा ऐसा शिर्क है जो आज उम्मत के अंदर नहीं पाया जाता है? बददीनी, औरतों के अंदर जो है बेपर्दगी और जनाकारी और शराब नोशी और इस तरीके से कौन सा ऐसा जुर्म है जो आज का मुसलमान नहीं करता है? कौन सा ऐसा जुर्म है जो आज का मुसलमान नहीं करता है? मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें इसीलिए आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इबरत और नसीहत के तौर पर भेजता है, इसलिए लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम तौबा करें, अल्लाह के दरबार में आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आएँ और इस तरीके से अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी चीज़ें हमको दिखाता है कि अपने गुनाहों को हम छोड़ दें। अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कस्बत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर, तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने बुरे अमाल का नतीजा है। वो याफ़ू अन कसीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने वाला है। माफ़ कर देने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हम गुनाह करते हैं। उन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की मुसीबतें और इस तरह के ज़लज़ले हमारे ऊपर भेजता है ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने एक हदीस के अंदर फरमाया, जिस कौम के अंदर या जिस बस्ती के अंदर लोग ज़िना को और शराब को हलाल कर लेते हैं, फ़क़द अहल्लु अज़ाब अल्लाह, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को दावत दे दी है, अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर हलाल कर लिया है। जिस बस्ती के अंदर ये ज़नाकारी हो रही है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाए, गाने आम हो जाएं और इस तरीके से ये सारी मासियत और नाफरमानी के ये सारे अड्डे खोल लिए जाएं, ऐसी कौम के अंदर और ऐसी उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसी उम्मत अपने ऊपर या ऐसी कौम अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को हलाल कर लेती है। अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं रोक सकता ऐसी कौम के ऊपर। और ज़नाकारी से और शराब पीने से बड़ा जुर्म शिर्क करना है, इससे बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों शिर्क करना। लिहाजा जिस कौम के अंदर शिर्क आएगा कि अल्लाह ताला उस कौम को छोड़ेगा, दुनिया की तबाही और आखिरत के अंदर भी तबाही और बर्बादी होगी। इसलिए शिर्क से तौबा करने की ज़रूरत है, गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी मेरे भाइयों, अल्लाह ने सब कुछ दिया हमको, अल्लाह को छोड़ करके गैरों की तरफ पर हम जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पास जाकर अपनी पेशानी को झुकाते हैं, गैरों के नाम पर नज़ो नियाज पेश करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीहे पेश करते हैं, वहाँ जाकर जानवर ज़बा करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों की जो है बातें करते हैं। ये सब शिर्क है मेरे भाइयों। जब तक इसको शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के अज़ाब से हम ना दुनिया के अंदर बचेंगे और ना आखिरत के अंदर बचेंगे। नबी की सुन्नत को हमने पामाल कर दिया, नबी की सुन्नतों की जगह बिदात और खुराफात हमने जो है कर लिया। आज सुनते हमारे माशरे के अंदर कम हैं। एक इंसान की ज़िंदगी उठा करके देख लीजिए कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है और एक दिन के अंदर कितने बिदात और खुराफात का इर्तिकाब करता है, कितने बिदात और खुराफात करता है। कोई ऐसा महीना बल्कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इंसान बिदात और खुराफात का इर्तिकाब न करता। सुन्नत के नाम पर बिदअतें लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं और इस तरीके से अकीदत और मोहब्बत के नाम पर शिर्क लोगों के अंदर तकसीम किया जा रहा है और शिर्क लोगों के अंदर बांटा जा रहा है और उसकी नशर इशाअत की जा रही है। इससे ज़रूरत है इस बात की मेरे भाइयों कि अल्लाह के दरबार में आए,
तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह शिर्क करने वाले को भी माफ़ कर देता है अगर वो तौबा करता है। तौबा से इंसान के सारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस तौबा सारे गुनाहों को मिटा देती है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी तक जो लाइल्मी में या इस तरीके समझाने में किसी वजह से शिर्क के अंदर मुलव्वस थे, उनके लिए एक मौका है वो शिर्क से तौबा करें। जो बिदात और खुराफात के अंदर पड़े हुए हैं उनके लिए मौका है मेरे भाइयों कि वो तौबा कर ले, अभी वक्त है हमारे पास। ये नसीहतें के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं। और क्या चाहिए, क्या कितना हम इंतज़ार करते हैं, क्या और चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाए और ये जो तौबा के दरवाज़ा वो भी बंद हो जाए और सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल कर आ जाए और हमारे लिए तौबे का दरवाज़ा बंद हो जाए? क्या हम ये चाहते हैं? क्या अभी हमारे लिए वक्त नहीं आया है? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी अल्लाह ताला का वक्त नहीं आया हमारे लिए कि हम अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे दिल नरम पड़ जाएं, अल्लाह के दरबार में आएँ? और कितनी मुसीबतें चाहते हैं और कितनी ज़िल्लत और तबाही के मुंतज़िर हैं आप? कितनी तबाही चाहिए, कितनी परेशानी चाहिए दुनिया के अंदर? अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान उम्मत है तो उम्मत मुसलमान है। मुसलमान है सबसे ज़्यादा परेशान, हर जगह मजलूम है, हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मुसलमान खुद इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को तहत करता है, मुसलमानों को कत्लेआम करता है और इस तरीके से खुद मुसलमानों के कत्ल का जरिया और सब बना हुआ है। कितनी जिल्लत चाहिए, कितनी तबाही और पस्ती चाहिए? क्या हमारे पास वक्त नहीं आ गया? कितना इंतजार करेंगे हम अल्लाह के दरबार में आने के लिए? कितना इंतजार करेंगे शिर्क से तौबा करने के लिए, बिदात और खराबात को छोड़ करके सुन्नत गले लगाने के लिए? वक्त आ चुका है मेरे भाइयों, अब और ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इबरत और नसीहत के लिए होती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आइए, इन तमाम चीज़ों को छोड़िए, बिदात और खराबात और शिर्क को। यही हमारी तबाही और बर्बादी का जरिया है, यही हमारी पस्ती का जरिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तक तुम दीन की तरफ पढ़ करके नहीं आओगे तुम्हें दुनिया के अंदर गलबा नहीं मिलेगा। उमर फारूक ने फरमाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है, इस्लाम से इज्जत मिलेगी। इस्लाम को छोड़ देंगे अगर हम और दुनिया में इज्जत चाहेंगे तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला है, लिहाजा इज्जत उसी को देगा जो उसके दीन पर अमल करने वाला होगा और उसके नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा। लिहाजा इज्जतें चाहिए, दुनिया के अंदर गलबा चाहिए, उसके लिए शर्त है ईमान, उसके लिए शर्त है दीन की तरफ पलटना, उसके लिए शर्त है गुनाहों को छोड़ना, उसके लिए शर्त है नमाज कायम करना, दीन को कायम करना, उसके ऊपर अमल करना। हर इंसान दीन का नुमाइंदा बन जाए, हर इंसान दीन को अपने ऊपर अपने ऊपर कायम कर ले। अपने ऊपर इंसान अगर दीन को कायम कर लेगा दुनिया के अंदर खुद ब खुद दीन कायम हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम इन तमाम चीज़ों से इबरत पकड़ें और नसीहत पढ़ें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें और इस तरीके से खुद दीन पर कायम रहें और इस तरीके से और जो है तौबा करें और तमाम गुनाहों को छोड़ दें। तभी हमारे लिए दुनिया के अंदर इज्जत मिलेगी और इस तरीके से तभी जा करके दुनिया के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी अता फरमाएगा। हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मुसीबतों से हमको महफूज रखा है और जो इन मुसीबतों के अंदर पड़े हुए हैं या मुसीबतें जिनको पहुंची हैं, हम उनके लिए दुआ भी करें और उनके लिए इमदाद भी करें। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे मदद करने की, आप उनकी इमदाद भी करें। मेरे भाइयों, मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ ममलकत सऊदी अरब का, और ममलकत सऊदी अरब हमारे किसी शुक्रिया का जो है मोहताज नहीं है। जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो मुल्क किसी की मदद करता है ममलकत सऊदी अरब है। इस मौके पर भी सबसे ज़्यादा जिसने मदद का हाथ बढ़ाया है ममलकत सऊदी अरब है, जिसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और गाड़ियों की गाड़ियाँ और जहाज़ों के जहाज़ सामान लेकर के बाकायदा मसर जो है तुर्किया और सूरिया के अंदर लेकर के जा रहे हैं। और वहाँ के सदर ने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जिसने अब तक हमारी मदद की है ममलकत सऊदी अरब है। ये ममलकत सऊदी अरब है मेरे भाइयों, जो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई मुसीबत आती है, खास तौर से मुसलमान मुल्कों के अंदर सबसे पहले जो हाथ बढ़ाता है ममलकत सऊदी अरब है। लेकिन सबसे ज़्यादा गालियाँ सऊदी अरब को दी जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अक्सर लोग सऊदी अरब ही गाली देते हैं, उन्हीं को बुरा भला कहते हैं, इसलिए कि यहाँ उनको मज़ार नहीं मिलता, यहाँ शिरक करने के नहीं मिलता, ईद मिलादुन नबी करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता, यहाँ कब्र परस्ती के लिए दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। इस तरीके से ये इसी वजह यही है मेरे भाइयों, वरना दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दीन की मदद करने वाला, दीन की नशर व शात करने वाला और अवाम के लोगों की मदद करने वाला और हरमैन शरीफैन और मुसलमानों की मदद करने वाला दुनिया में अगर कोई मुल्क है ममलकत सऊदी अरब है मेरे भाइयों। इसलिए इससे मोहब्बत करना, ये दीन से मोहब्बत की पहचान है, ईमान से मोहब्बत की पहचान है। जिसे सुनना हो सुने हमारी बात, और जिसे ना सुनना ना हमारी बात ना सुने, ये पहचान है इनसे मोहब्बत रखना। क्योंकि इनके जरिए से आज दुनिया के अल्लाह के फजल के बाद तौहीद की जो सदाएं हम सुनते हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ अल्लाह के फजल के बाद ममलकत सऊदी अरब का हाथ है। हर मौके पर मेरे भाइयों आज पूरी दुनिया में देखिए, यही इस हुकूमत से पहले कितना शिर्क था दुनिया के अंदर, इसी हुकूमत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क से भी और दुनिया के अक्सर मुल्कों से भी शिर्क को ख़त्म किया है, बिदात व खुराफात को ख़त्म किया है। इसलिए हक बनता है कि हम इनका शुक्र अदा करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन लम यश्कुरिल्लाह फलम यश्कुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा नहीं कर सकता।
اور انہوں نے باقاعدہ ایپ جاری کیا ہے، لنک بھیجا ہے، اگر کسی کو مدد کرنا ہے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ بھی مدد کرنا چاہیں پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بینک میں جائے، راضی ہے بینک میں، اور بینکوں میں جائیے، باقاعدہ انہوں نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے، آپ کچھ پیسہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ایپ کے ذریعے سے کچھ پیسہ بھیجنا چاہیں آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ امانتداری کے ساتھ حکومت کی سرپرستی میں آپ کے دی ہوئی رقم ان تک پہنچے گی اور ان کی امداد کے لیے پہنچے گی، اور اس طریقے سے آپ کا تعاون ہوگا۔ لہذا آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے مال سے بھی ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھے، قیامت کے آخری صبح تک اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم رکھے۔ اللہ انہیں مزید توفیق دے، کوئی طریقے دین اور ملت اسلامیہ کے لیے، انسانوں کے لیے مزید کام کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اور ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر اور دین پر توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین نبی کی سنتوں پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے، بدعت و خرابات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔